the Healing Towards Happiness. It's provide a platform to the individual across all age groups to start a healthy and positive interaction without any hesitation. And this group is founded by me. I'm the founder and chairman of this. On 2nd September, I gave birth to this group, and it's hardly a month, or means we are just in the second month. We are leading with awareness webinars and all. There are more council members attaching with us, and they are also the team members working together and making this project plus this group to do something really in the favor of the society. So our mission is by 2025 to reach 1 million people, to make them aware of the issue. And vision is to listen to the issues and offer the solution by raising awareness and by providing guidance to the regular webinars and talk shows and on very specific subjects related to mental health. So the goal of STH group is to provide a forum where individual can be heard regarding issues such as suicidal thoughts, goal setting, confusion, depression, stress, self-worthiness, and whatever, means like whatever they want to talk to us, or if they want a basic counseling from us, we are always there to hear them. We are always there to provide a basic counseling to them. And we have experts and therapists attached to us. So if any of the person is found that they want just more serious sessions, so then that person is referred to the team. So from whoever he wants or she wants to take these sessions, they can go for it for one-to-one sessions. So this is the whole idea behind. Talking about today's webinar, so it is about the Panchkosh, which I am very I can say like ignorant about the subject. And we have an expert with us, Monica. So Monica is an MBA in marketing, gold medalist in yoga, and she did her master's in yoga from Jivaji University, Gwalior. She qualified UGC NET Yoga and is pursuing doctorate in yoga. Along with this side, she did many courses from renowned institutions in pre and postnatal yoga, back pain and therapies of different diseases. Monica is presently associated with Vinayas Yoga Studio Gwalior and giving therapy in countries like UK, Canada, USA, Singapore, and taught yoga to the various prestigious organizations like SAF, 30 Battalion, NCC Credits, MP Police, taken sessions of 200 people at Jhansi Fort under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and taken sessions for 1700 BSF Jawans on International Day of Yoga, 21st June 2022. She is a council member of our, that is Healing Towards Happiness, and has promised us to serve group through webinars on different topics related to mental and physical health. I welcome you, Monica, for today's session. And please throw some light at what is the session about, and then you can begin with your session. Thank you. Thank you so much, Preeti. I am glad to present this topic today because this is of immense importance in humans' life. Actually, हम जानते ही नहीं हैं कि हमारी presence सिर्फ एक लेयर नहीं है जो हम देखते हैं, हमारी 5 लेयर्स होती हैं। और काफी सारी बीमारियां जो आज की डेट में हम देख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है हमारी, हम उससे काफी हद तक बच सकते हैं अगर हम अपनी 5 लेयर पे शुरू से ध्यान रखें। इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द 5 लेयर्स, हम इतना वो कर सकते हैं, इतना अपने आप को संभाल सकते हैं कि हमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेडिकल सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। बेसिकली इट्स ऑल रिलेटेड टू माइंड, मगर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी अपने पीपीटी के थ्रू। तो शुड आई स्टार्ट द टॉपिक ना? Yes, you can. Yeah. Wait, I'll share the screen. Is that visible? Sorry to interrupt. That doctor, you were saying that he is a very senior person. हाँ, yes, मैं अभी बताती हूँ, एक सेकंड मैं इसको wait. My screen is visible? Yeah, screen is visible. You just tell me the name so that I can keep. I feel privileged to share this with all of you that
a very renowned oncosurgeon from Tata Memorial Hospital, Dr. Parmanand Jain. Dr. P.N. Jain is with us for this presentation today, and I feel myself blessed to have him in this webinar. So over to you, Preeti. Yeah, so sir, I'm really glad that Monica told me that you are going to join and you're going to be the part of this today's session. So definitely means like Monica is going to start with the session. So I know that how much you talk about the healthy lifestyle. I would request you to please remain till the end and throw some light on the healthy lifestyle and enlighten our audience, whoever has joined us today. I'll be glad if you just give us 2 minutes speech later after when Monica will end her session. I'm really welcome you and thanks for joining. Yeah, मेरी पूरी screen है ना प्रीति? Yeah. Yeah. So let me welcome you all in this very important concept of Panchakosha and health management through fivefold existence of human being. इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छी सेइंग मैंने पढ़ी थी कहीं पे कि टाइम एंड वेल्थ आर टू प्रेशियस एसेट्स दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट व्हाइल दे हैव बीन विद अस. ये हेल्थ और टाइम दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जब तक हमारे पास होती है. हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं. हम तो हेल्दी हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की, हम तो हेल्दी हैं, हम जो चाहे वो खा सकते हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा है. और ये होता है जब हम यंग एज में होते हैं. हम बॉडी को बहुत ज्यादा यूज कहने के बजाय मैं अब्यूज कहूंगी, क्योंकि हम बॉडी को बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं और उसको उतना रेस्ट नहीं देते जितनी जरूरत होती है. और सब कुछ सही चल रहा होता है, बट हर चीज की जैसे एक लिमिट होती है, बॉडी की भी एक स्टैमिना, एक लिमिट होती है, और बाद में जाके हम उस चीज को समझते हैं. एक योग चूड़ामणि उपनिषद है जो कि योगा का क्राउन कहा जाता है. उपनिषद के मामले में 108 उपनिषद में इसको क्राउन ऑफ योगा बोला जाता है. इसके अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है, उससे मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ. स्वदेहे यो न जानति तस्य सिद्धि ही कथम भवेत. इसका मीनिंग ये है कि जो अपनी शरीर को ही ढंग से नहीं समझ पाता, उसे कोई भी सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, कैसे उसको अचीव कर सकता है वो किसी भी सिद्धि को. तो बेसिक जो हमारी लाइफ का उद्देश्य है वो तब तक हम नहीं जान सकते जब तक हम अपने बॉडी को, अपने बॉडी के टाइप को, अपने हेल्थ को, अपने शरीर को ही ना समझें. पंचकोश से शुरू कर रहे हैं. व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस एवरी ह्यूमन बीइंग हैज. फर्स्ट लेयर हम सबको दिखती है, अन्नमय कोश, राइट. अन्नमय कोश विच इज मेड अप ऑफ फूड, जो हम सबको दिखता है, और हम सब लोग यही मानते हैं कि ये मैं हूं, दिस इज मी, जो हमारा शरीर हमको दिख रहा है. बट दिस इज नॉट 100% ट्रू. हमारी जो सेकेंड लेयर होती है, जिसकी वजह से ये फर्स्ट लेयर चल रही होती है, वो लेयर है प्राणमय कोश, यानी कि जो वाइटल एनर्जी हमारे अंदर चल रही है, वो एक लेयर है हमारे अंदर. तीसरी लेयर जो है मनोमय कोश, चौथी लेयर है विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट शीट, और पांचवी जो लेयर है आनंदमय कोश, ये हर इंसान के अंदर विद्यमान है. मगर इस जो आनंदमय कोश जो लेयर है, हम एक एक लेयर के बारे में डिटेल में अभी जानेंगे. तो ये जो मेन 5 नाम है इनको हम देख लें. अन्नमय कोश, व्हाट वी ऑल कैन सी एंड सेंस. प्राणमय कोश, विच वी कैन सेंस. मनोमय कोश, विच वी कैन सेंस. विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश. एक एक लेयर के बारे में हम ध्यान से पढ़ते हैं. व्हाट इज अन्नमय कोश? फूड शीथ जिसको हम बोलते हैं. अगर हम इस पूरे पार्ट को 2 हिस्सों में बांटें, व्हाट इज अन्न एंड व्हाट इज मय. अन्न से जो बनी हुई शीत है, यानी कि कोश मीन्स शीत, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश. ये एक फिजिकल बॉडी है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हर्ट होती है और जिसको हमें फूड के साथ, पानी के साथ नरिश करना पड़ता है और इसका ध्यान रखना पड़ता है. दिस इज कॉल्ड अन्नमय कोश. ये ग्रॉस लेवल पे मैंने बताया. यहाँ पे हमें कहते हैं कि पंच धातु से हम बने हैं, पंच धातु में हमको विलीन हो जाना है. तो यस, दिस शरीर इज मेड अप ऑफ पंच धातु कॉल्ड पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश. ये 5 चीजों से मिलकर हमारी बॉडी बनी है. और जब ये बॉडी बनी है तो इसके अंदर कुछ दोष भी हैं. वो दोष कहलाते हैं त्रिदोष, वात, पित्त एंड कफ.
वात पित्त एंड कफ ये 3 ऐसे दोष होते हैं जिसमें 2 दोष हमारी बॉडी में डोमिनेंट होते हैं, और इसे हमें समझना, ये एक अलग आयुर्वेदिक कंसेप्ट है, इसको हम कभी और कवर करेंगे। बट ये 3 दोष जो होते हैं वात पित्त और कफ, इसमें से 2 किसी भी इंसान की बॉडी में डोमिनेंट होते हैं और इनके इम्बैलेंस से डिजीजेस आती हैं। और अगर हम इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखते हैं तो हमारी हेल्थ सही रहती है। तो ये जो हमारी शीट है अन्नमय कोश, इसको हम कई तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। ये भी चीजें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। मगर आज की डेट में अन्नमय कोश यानी कि फूड शीट यानी कि फिजिकल बॉडी क्यों हमारी इतना ज्यादा सफर कर रही है? हम कुछ ऐसे काम आज की डेट में कर रहे हैं, स्पेशल यंग जनरेशन, खाने पीने का कोई रेगुलर टाइम नहीं। जब भूख लगी, जब ऑफिस से छुट्टी मिली, जब मिला तब खा लिया, जो मिला वो खा लिया। दम कर रहे हैं हम शरीर में, जंक फूड है, ये सारी चीजें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे पास डिस्कस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सर्काडियम रिदम। हमने आज की डेट में सर्काडियम रिदम को इतना ज्यादा इग्नोर कर रखा है। व्हाट इज सर्काडियम रिदम? शॉर्ट में बताती हूँ। ये हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम है, नेचुरल क्लॉक है, जो बॉडी को सुलाती है, जगाती है, बॉडी को भूख महसूस करवाती है, बॉडी को रिपेयर करती है, बॉडी को आने वाले एटमॉस्फेयर चेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है, यह बॉडी को दूसरे ऐसे कई सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करती है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या हमारी बॉडी का जो वात पित्त और कफ है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके लिए प्रिपेयर करती है। तो सर्काडियम रिदम के हिसाब से अगर हम सोएंगे जागेंगे नहीं तो बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी और ये लॉन्ग टर्म में बॉडी ब्रेकडाउन होगी। तो आज के डेट में ना कोई सर्काडियम रिदम का ध्यान रखता है, नो वन टेक्स केयर अबाउट व्हाट ही और शी इज ईटिंग, एट व्हाट टाइम ही और शी इज ईटिंग, कितना स्लीप हम दे रहे हैं, कितना हम रेस्ट दे रहे हैं बॉडी को जितना जरूरत है। आज के डेट में बहुत सारे केसेस हम सुन रहे हैं, जिम में फला एंड फला 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, 35 ईयर्स की एज में एकदम से हार्ट अटैक पड़ा या साइलेंट अटैक पड़ा और वो खत्म हो गया। ये क्या पहले सुनने में आता था? बिल्कुल भी नहीं आता था पहले सुनने में। पहले ये होता था कि हाँ अब एज हुई है, इसके बाद बीमारियां शुरू होंगी। मगर आज मेरे साथ एक बहुत ऐसा अनफेवरेबल इंसिडेंट हुआ। मेरे जो पीएचडी के गाइड थे, ही वाज जस्ट 38, ही वाज वेरी गुड एंड ही वाज वेरी एक्टिव स्पोर्ट पर्सन थे। अचानक एक दिन फोटो खिंचवाते खिंचवाते उनको साइलेंट अटैक पड़ा एंड ही पास्ड अवे। तो व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि हम सारी चीजें कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग द बॉडी प्रॉपर रेस्ट जितना हमें चाहिए आज की डेट में। और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। आज के डेट में हम स्ट्रेस हर चीज का लेते हैं, जो हमारे काबू में है उसका भी, जो हमारे काबू में नहीं है उसका भी, और हमारी बॉडी ये बर्डन उठा नहीं पाती लंबे समय तक, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और कभी भी धोखा दे जाती है। सेकेंड लेयर आती है प्राणमय कोश, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं मेडिकली और जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं उसके हिसाब से मैं दोनों चीजों से आपको प्रूव करके और बताऊंगी कि कैसे इंटरकनेक्टेड है। ये सारे सारे कोशाज आपस में इंटरकनेक्टेड है। किसी एक कोश में डिस्टर्बेंस आता है, हमारे बाकी के सारे कोश डिस्टर्ब होते हैं और डिजीजेस आती हैं बॉडी पे। आई विल कनेक्ट दिस विद मेडिकल एस्पेक्ट्स, मेडिकल ग्राउंड्स आल्सो। प्राणमय कोश, हमारे अंदर जो वाइटल एनर्जी चल रही है, व्हाट इज वाइटल एनर्जी? जो प्राण चल रहे हैं, इसको ग्रॉस लेवल पे अगर हम समझें, प्राणमय कोश मींस प्राण, जिसके अंदर प्राण है, प्राणमय कोश। हम इसको सांस कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं नॉर्मल एक लेमेंस लैंग्वेज में, कि प्राणा मतलब सांस चल रही है, मतलब प्राण है। जिस दिन सांस रुक गई उस दिन प्राण खत्म हो गए, हमारी बॉडी निर्जीव हो गई। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा कनेक्शन ये देखने मिल रहा है अन्नमय और प्राणमय में, कि जब तक प्राणमय कोश चल रहा है, जब तक हमारा अन्नमय कोश चल रहा है, दैट मीन्स प्राणों की डोरी से अन्नमय कोश वाली कठपुतली काम कर रही है। अब ये जो प्राणास होते हैं, ये प्राणास भी पंच प्राण, 5 टाइप के प्राण होते हैं, बल्कि अगर मैं इसको और डिटेल में यौगिक लैंग्वेज में जाके कहूं तो 10 टाइप के प्राण होते हैं। 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं, जो कि छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो जो 5 प्राण हैं वो कौन कौन से हैं, इसको हम एक एक करके जल्दी से देखेंगे। सबसे पहला काइंड ऑफ प्राण होता है हमारी बॉडी में अपान। ये जो डाउनवर्ड फोर्स होता है उसको अपान बोलते हैं, जो कि हमारे डिफिकेशन के लिए, यानी कि मल मूत्र विसर्जन के लिए, या फिर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो सीक्रेशंस होते हैं उनको इजेक्ट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है उसको रिलीज करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए ये वाला प्राण अपान जिसको बोलते हैं इज रिस्पॉन्सिबल। ये नाभि से नीचे की ओर काम करता है, हमारे मूलाधार चक्र की तरफ।
ये चक्रास का भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हम कभी फ्यूचर में कवर करेंगे। दूसरा प्राण होता है जिसको सिर्फ प्राण बोलते हैं। ये प्राण जो काम करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग मूवमेंट, दिस इज एक्चुअल प्राण, जो हमारे शरीर के अंदर सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ने का काम करता है। तीसरा होता है उदान। उदान का काम होता है अपवर्ड एक्टिविटीज के लिए, जो हम स्पिटिंग करते हैं या वॉमिट करते हैं, इन चीजों के लिए जो प्राणास की जरूरत होती है उसको उदान बोलते हैं। दैट मीन्स अपाना इज डाउनवर्ड फोर्स, उदाना इज अपवर्ड फोर्स बॉडी के अंदर। हाँ, फिर आता है समान। समान का क्या काम होता है? रिस्पॉन्सिबल, ये हमारे मणिपुर चक्र यानी नाभि पे काम करता है, नाभि के आसपास, और ये हमारे डाइजेशन के काम आता है, हमारी जठराग्नि को प्रबल रखने के काम आता है, और ये बैलेंस करता है प्राण और अपान को बॉडी के अंदर, ये बीचों बीच शरीर के मध्य में होता है। और लास्ट होता है व्यान, जो कि व्यान प्राण, ये इसको क्या बोलते हैं? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल ऑर्गन्स। लाइक ये जितने भी प्राणास चल रहे हैं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, जो पेरिफेरल नर्व्स और पेरिफेरल इम्बल्स और ब्लड सर्कुलेशन, इन सब चीजों का काम आता है, इस प्राण को बोलते हैं व्यान। इसके अलावा 5 उप प्राण होते हैं, जो कि हमारी छींक आना, उवासी लेना, आंखों को पलकों को झपकाना, ये छोटे छोटे कामों के लिए काम आते हैं। वो 5 प्राण इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए। ये जो प्राणास हमारी बॉडी में मूव करते हैं, ये एक बहुत गहरी साइंस है कि प्राणास के लिए, जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, बॉडी में कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक पूरा नाड़ीज का चैनल है, जो कि हमारी बॉडी में एक एक कोने में प्राणास को पहुंचाते हैं। ये नाड़ीज के चैनल में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जो कि पूरी बॉडी के एक एक छोटे छोटे हिस्से में प्राणास को पहुंचाते हैं। अब हमें किसी बॉडी में दर्द हो रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि क्यों दर्द हो रहा है। या तो वहां पे प्राणास अक्यूमुलेट हो गए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, या उस एरिया में प्राणास पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें उस एरिया में दर्द हो रहा है, या हमारे कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे चक्रास से रिलेटेड है। तो नाड़ीज का क्लीन होना बहुत जरूरी है प्रॉपर प्राणों के संचार के लिए पूरी बॉडी के अंदर। इसकी भी टेक्निक्स है, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तीसरी शीट है मनोमय कोश, द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट शीट इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये लेयर रेफर करती है हमारे माइंड को, हमारे जो परसेप्शंस होते हैं वर्ल्ड को लेकर, उसको ये डिपिक्ट करती है। मनोमय कोश बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें, मन, चित्त और अहंकार, ये क्या होते हैं? तीनों चीजें हमारे ये मन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मन मतलब हमारे परसेप्शन, जो हम किसी भी चीज के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और ये किसके आधार पे होता है? व्हाट वी सी, व्हाट वी स्मेल, व्हाट वी टच, व्हाट वी टेस्ट, इसके आधार पे, जो हम अपने इंद्रियों के आधार पे जो हम धारणा बनाते हैं, सेंस करते हैं वर्ल्ड को देखकर, उसके हिसाब से जो परसेप्शन बनता है उसको बोलते हैं मन। और इसके अंदर ही हमारा जो सारा कुछ परसेप्शन वाला काम है वो चलता है। दूसरा होता है चित्त। इस चित्त को यौगिक टर्मिनोलॉजी में बोला गया है मेमोरी। हम किसी भी चीज को देखकर जो परसेप्शन बनाते हैं, जो परसीव करते हैं सेंसेस के थ्रू, वो जो मेमोरीज हमारे अंदर जमा होती हैं उसको बोलते हैं चित्त, यानी कि मेमोरी। और तीसरा होता है अहंकार, द सेंस ऑफ आई, मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये मैंने किया, मेरी वजह से ये हुआ। तो ये जो आईनेस है, दिस accumulates in the third part अहंकारा, ईगो जिसको हम बोलते हैं। तो ये मन, जो ये जो मनोमय कोश है, ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये मैं आगे जाके समझाती हूँ जब मैं इसको डिटेल में और लूंगी, इसको मैं कनेक्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मन के ऊपर, ये मनोमय कोश के ऊपर योग वशिष्ठ, जो कि आज से 6000 साल पहले ग्रंथ लिखा था, जब राम जी थोड़ा सा मिसलीड हो गए थे, मतलब उनको वैराग्य आ गया था कि ये दुनिया बेकार है और जीने का कोई वो नहीं है, मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, इस टाइप की उनके अंदर फीलिंग्स आने लगी थी। तब गुरु वशिष्ठ ने उनको समझाया था कि आपका जो अवतार हुआ है, जिस पर्पस से हुआ है, अगर आपने वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया, तो वो पर्पस कैसे पूरा होगा। इस पूरे संवाद के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया था, योग वशिष्ठ। यहाँ पे गुरु वशिष्ठ ने राम जी को ये कंसेप्ट समझाया था, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, कि हाउ द डिजीज कम इनटू योर बॉडी। तो डिजीज जो आती है हमारी बॉडी के अंदर अन्नमय कोश के ऊपर, वो आती है मनोमय कोश से। कैसे? इसको मैं आगे एक स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चौथा कोश है हमारा विज्ञानमय कोश, यानी कि हमारा जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट विजडम शीट, जो हमारी खुद की नॉलेज है। ये हमें, देखिए, मन वहां पे भी बुद्धि है, यहाँ पे भी बुद्धि है, मगर ये जो बुद्धि है ये बैलेंसिंग सिखाती है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ये आपको डिस्क्रिमिनेट करना सिखाती है ये वाली शीट, कि सोशल एस्पेक्ट पे या जो एथिकल एस्पेक्ट पे या जो हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसके आधार पे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। यहाँ पे आपको बैलेंस करना सिखाती है। अगर ये विज्ञानमय कोश हमारा प्रबल है, अगर स्ट्रांग है, तो हम चीजों में डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू। ये शीट जो है इंट्यूशन है, और ये कनेक्टेड है हमारी इनर विजडम से, हमारी जो खुद की समझदारी है। एंड दिस इज कॉल्ड द डीपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर हमारी ये शीट प्रबल है तो हम पांचवी शीट जो हमारी आनंदमय कोश है, हम उसको अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। ये हमारी इनर वॉइस कहती है, जो हमको गाइड करती है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मतलब जानवर को आदमी से डिफरेंशिएट करती है। क्योंकि हमारे अंदर, आदमी के अंदर और जानवरों के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे भूख है ना, वासना है, और भी कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कॉमन है। जानवर कंट्रोल नहीं करता, मगर हम कंट्रोल करते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसे बिहेव करना है। तो ये सिर्फ इस शीट की वजह से है, जो कि जानवरों में नहीं है। ये विज्ञानमय शीट हमें इंसान बनाती है हमारी बुद्धि की वजह से। और पांचवी, जो हमारा अल्टीमेट एम होता है लाइफ का, टू गेट दिस ब्लिस, टू गेट दिस हैप्पीनेस विद इन, ये शीट होती है आनंदमय कोश। एंड बिलीव मी, ये शीट हर इंसान के अंदर पहले से विद्यमान है, जन्म से। मगर हम पूरे जिंदगी इस हैप्पीनेस को तो ढूंढते नहीं है, भूल जाते हैं, और हम ढूंढते हैं हैप्पीनेस, बड़ा बंगला, बड़ी कार, बड़ा घर, है ना, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, बच्चे नाम कमा रहे हैं। हम दूसरी चीजों में इस खुशी को ढूंढते हैं, जबकि जो आनंद है हमारे अंदर छुपा हुआ है और उसका कुछ और ही स्वरूप है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज टू रिकॉग्नाइज दिस आनंदमय कोश, राइट। ये होती है आनंद। दिस इज कॉल्ड अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी एंड परफेक्ट हेल्थ। यहाँ पे आप मानसिक, शारीरिक, स्पिरिचुअल, सोशल, हर ग्राउंड पे आप यहाँ पे अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। इस शीट को बोलते हैं आनंदमय कोश। और इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये बहुत नजदीक होती है, सबसे अंदर होती है जीवात्मा, जिसके ऊपर ये पांचों शीट्स हैं। तो ये वाली शीट जब हम पहुंच जाते हैं इस तक, तब जाके हमें अपने आत्मा का, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि एक्चुअली मैं हु आई एम, मैं हूं कौन, क्यों मेरा जन्म हुआ है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये बॉडी हमारी, ये मैं हूं, बट व्हाट एक्चुअली यू आर, ये शीट हमें पहुंचाने में मदद करती है। तो आनंदमय कोश, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मैंने हेल्थ के, हमारे जो हेल्थ के जो 5 डायमेंशंस होते हैं, उनको मैं इस पांचों लेयर से कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। हमारी जो पर्सनालिटी के जो 5 डायमेंशंस होते हैं, वो होते हैं फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी पर्सनालिटी, जैसे से सपोज एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है जो कि बाहर वालों के लिए बहुत बहुत ही अच्छा इंसान है, हेल्प करने के लिए तैयार, बिहेवियर में अच्छा, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मगर घर में जैसे ही आता है, उसका अपनी बीवी बच्चों के साथ में बिहेवियर बिल्कुल वैश्याना, जानवरों टाइप का हो जाता है। आप ऐसी पर्सनालिटी को क्या कहेंगे? Is that a balanced personality? Never, no. One should be physically smart. One's personality is physically very pleasant, very good personality. मगर सोशली उसको किसी से बात करने में मजा नहीं आता, उसके किसी के दुख सुख में शामिल होने में मजा नहीं आता। सोशली हिज पर्सनालिटी इज वीक। अगर आपके घर में कुछ हो जाए, किसी को कुछ चोट लग जाए या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, और आप उसको देखने के बजाय रोना पीटना, मतलब आप बिल्कुल अपना आपा खो दें, डू यू से दैट पर्सन इज इमोशनली बैलेंस्ड और उसकी इमोशनल पर्सनालिटी अच्छी है? नेवर। यू शुड बी इमोशनली स्ट्रांग, मतलब यू शुड बिहेव वाइसली व्हेन सम गुड और बैड सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में आते हैं। अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं है,
तो ही इज नॉट स्पिरिचुअली हैंडसम, ऐसा बोलना चाहिए। ये हमारे जो 7 चक्रास इस पिक्चर में दिख रहे हैं आपको, सहस्त्रार चक्र, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करते हैं, सिमिलरली हमें चार्ज करने के लिए भगवान ने ये सहस्त्रार चक्र यहाँ पे दिया हुआ है सर के ऊपर, बिगेस्ट यहाँ पे जो मेन चक्रा होता है। दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन पॉइंट। बिलीव मी, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। ये एक इनर स्ट्रेंथ आपको देता है, तो यू शुड बी स्पिरिचुअली स्ट्रांग आल्सो। और आज के डेट में होता क्या है, माँ बाप हार्डली कभी बच्चे को बोलते हैं कि चलो कुछ नहीं, हफ्ते भर नहीं तो संडे को मंदिर जाओ, या आप वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेके आओ मंदिर जाके, या आप जहाँ पे भी प्रेयर करते हैं वहां जाओ, या दिन भर में कुछ नहीं तो 10 मिनट पूजा ना करें, मंदिर में ना जाए, भगवान के सामने ना बैठे, बट आंखें बंद करके यू शुड ट्राई टू कनेक्ट विद द अलमाइटी, विद द सुप्रीम पावर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल, अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, अगर आपके अंदर विजडम नहीं है, अगर आप लोगों को समझ नहीं सकते, अगर आपका इंटेलेक्ट इतना नहीं समझाता आपको कि हाउ टू बिहेव इन सच सर्कमस्टांसेस, एडवर्स और गुड, तो यू आर नॉट इंटेलेक्चुअली फिट आपकी पर्सनालिटी। तो ये सारे कोशास के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो हम अपनी 5 फोल्ड पर्सनालिटी को भी कई फोल्ड इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। और ये सारी पर्सनालिटीज जब हमारी इंप्रूव होती हैं, तो हमारा जो ओवरऑल ऑरा है वो पॉजिटिव होता है, और हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग उस पॉजिटिव ऑरा से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग हमसे कनेक्ट करते हैं। बहुत गहरे कंसेप्ट हैं जो हमने योग वशिष्ठ से यहाँ पे लिए हैं। डिजीज का जो कंसेप्ट है, ये इसका जो रेफरेंस है, ये मैं समझाने जा रही हूँ। इस स्लाइड के ऊपर मैं स्पेशल आपका अटेंशन लाना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गुरु वशिष्ठ ने 5 लेयर, तो ये आ चुकी थी, 5 लेयर के ऊपर उन्होंने बोला कि ये 5 लेयर में से दिस इज कॉल्ड मनोमय कोश, दिस इज कॉल्ड मनोमय कोश। ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। दिस इज मनोमय कोश। से सपोज मैं इसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में आज की डेट में लेकर समझाती हूँ। अगर किसी भी थॉट को आप बार 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 सोचेंगे, या कोई ऐसा स्ट्रेस है जो आप बार 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 सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, और आप उसके बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो थॉट आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जाके एक सीड ऑफ स्ट्रेस बन जाएगा, एक सीड ऑफ स्ट्रेस बन जाएगा। इस सीड ऑफ स्ट्रेस को गुरु वशिष्ठ ने आदि बोला है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मेंटल इलनेस। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड मेंटल इलनेस। गुरु वशिष्ठ ने इसको आदि का नाम दिया। अब ये आदि कैसे बाकी के कोशों को अफेक्ट करती है, इसको हम समझते हैं। आदि इज कॉल्ड मेंटल एजिटेशंस। आपकी समस्या, आप उसका हल नहीं पा रहे हैं, और ये मेंटल एजिटेशंस अगर आप किसी से शेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका समाधान आपको मिल जाता है। मगर अगर आप इसको शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज के डेट में हम बहुत सारे सुसाइडल केसेस देख रहे हैं, डिप्रेशन के केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे बाइपोलर हम बिहेवियर्स देखते हैं लोगों के। ये क्यों है? आपके अंदर कुछ ना कुछ गुबार चल रहा है, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसको आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए शायद ये इस संस्था का प्रीति ने जन्म किया, हीलिंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस, कि यहाँ पे आप अपने जो थॉट्स हैं, अगर आप किसी अपने को नहीं बता सकते तो किसी और को बता सकते हैं, राइट। तो ये मेंटल एजिटेशंस, इसको आदि बोलते हैं। अब जैसे ही मेंटल एजिटेशंस आते हैं, ये देखिए, ये मनोमय कोश को इसने डिस्टर्ब किया, इसके अंदर वाइब्रेशंस आने शुरू हुए। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप अच्छे पड़ोसी हैं तो आपकी परेशानी से आपका पड़ोसी परेशान होगा। आपका पड़ोसी सबसे पहले कौन है यहाँ पे? प्राणमय कोश। आपके हैप्पीजार्ड फ्लो ऑफ प्राणा हो जाएंगे, आपकी सांस ऊंची नीची चलने लगेगी, है ना। और जैसे ही आपके प्राणमय कोश में डिस्टरबेंस आएगा, आपकी नाड़ीज में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि हमारे सारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है, राइट। और ये नाड़ी किसके अंदर है? अन्नमय कोश के अंदर। तो एक पड़ोसी ने इस पड़ोसी को डिस्टर्ब किया, इस पड़ोसी ने डेफिनेटली इस पड़ोसी को परेशान करना ही करना है। तो अब देखिए, अब ये हैप्पीजार्ड प्राणा, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से अलग हटके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाती हूँ। जैसे ही आप कहीं बैठे हैं और मैं आपसे बोलूं सांप आया, इमीडिएटली होगा क्या? आपके
दिमाग में एकदम से एक थॉट आया डेंजर, आपका दिमाग तुरंत उसी समय मैनिपुलेट करेगा कि डेंजर है, आपका प्राणमय कोश डिस्टर्ब हुआ। क्या होता है, बहुत तेज सांस चलने लगती है, आंखें डायलेट हो जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग उसी समय डिसाइड करता है वेदर यू विल फाइट विद दिस स्नेक और यू विल फ्लाइट द सिचुएशन, यानी कि आप उस सांप को मारेंगे डंडा लेके या आप वहां से भाग जाएंगे बचने के लिए। बट इन बोथ द सिचुएशंस योर बॉडी नीड्स एनर्जी, इमीडिएट एनर्जी। तो ये चीज यहाँ पे देखिए, यहां तक मैंने इसको प्रूव किया कि जैसे ही आपका मन डिस्टर्ब हुआ, आपका प्राणमय कोश डिस्टर्ब हुआ, और मैंने उसको एक लाइफ सिचुएशन से, एग्जाम्पल से कनेक्ट करके बताया। अब देखिए, जैसे ही ये इंस्टेबिलिटी ऑफ नाड़ीज आती है, हैप्पीजार्ड फ्लो ऑफ प्राणास होता है, ये सबसे पहले अन्नमय कोश के सेंट्रल हेलिपेड, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, उसको हिट करता है। और गुरु वशिष्ठ ने यहाँ पे 3 प्रकार के प्रॉब्लम्स बताई हैं, जिसको बोलते हैं अजीर्णत्वम, यानी कि अंडर डाइजेशन, आप जो खा रहे हैं वो पच ही नहीं रहा। अति जीर्णत्वम, ओवर डाइजेशन, डिसेंट्री, जो खा रहे हैं वो रुक ही नहीं रहा। और कुजीर्णत्वम, रॉन्ग डाइजेशन, मतलब आपने खाया, आपको ब्लोटिंग हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, आपका वो खाना मुंह से बाहर निकल गया। तो अगर आज की डेट में लोग, आप देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आपको ये कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि पेट में मरोड़ हो रही है, हमको कॉन्स्टिपेशन है, हमको डायरिया लग जाता है बात बात पे, या हमारे पेट में कुछ ना कुछ होता रहता है। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ डिजीज कमिंग टू योर बॉडी थ्रू योर स्टमक। ये आज से 5000 साल पहले उन्होंने बताया था कि ये जो पेट में प्रॉब्लम्स होती हैं, इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ अपकमिंग डिजीज टू योर फिजिकल बॉडी। और ये जो बीमारी बॉडी पे आती है, इसको गुरु वशिष्ठ ने नाम दिया है व्याधि। आप लोगों ने सुना होगा आधि और व्याधि। अब ये व्याधि भी 2 टाइप की होती है, इसको हम समझेंगे पूरा कंसेप्ट फ्रॉम गुरु वशिष्ठ। व्याधि जो कि आधि से जनरेट होती है, उसको बोलते हैं आधिज व्याधि। जो मेंटल इलनेस से हमारी बॉडी पे प्रॉब्लम आती है, साइकोसोमेटिक एलिमेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधिजह व्याधि। और जो हमारे मेंटल एजिटेशन से नहीं आई बीमारी, उसको बोलते हैं अनाधिज व्याधि, अनाधिज व्याधि। और ये भी, इसको भी हम आगे जाके मतलब ये देखते हैं कि कुछ भी हो गया, कंटेजियस इन्फेक्शन हो गया, या ये कोरोना डिजीज हो गई है ना, प्लेग हो गया, पहले जो चीजें होती थी। मगर जो आधिज व्याधि होती है, जो कि मेंटल एलिमेंट से आती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सार, यानी कि ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं कि बर्थ और डेथ का साइकिल चलता रहता है, हम जिंदा रहते हैं, फिर हम मरते हैं, फिर हम कुछ और लेते हैं, राइट। और दूसरा होता है साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक एलिमेंट, जो कि हमारी सीधे सीधे मेंटल एजिटेशन से बॉडी पे आई है। मगर क्लियर कट इंडिकेशंस कहाँ पे होते हैं? पेट के ऊपर। अगर हमारा पेट बहुत दिनों तक खराब रह रहा है, तो हमें सतर्क होने की जरूरत है कि हमारे किसी ना किसी लेयर में अच्छी खासी प्रॉब्लम चल रही है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ डिजीज इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर हम देखते हैं, तो आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हम, हमारा एक एक वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि संडे के दिन बाहर जाके खाना है ना। प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मैंने प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों कहा, ये मैं अभी अगले स्लाइड में बहुत क्लियरली समझाऊंगी। कि एक टाइप का स्ट्रेस होता है डी स्ट्रेस, और एक टाइप का स्ट्रेस होता है यू स्ट्रेस, है ना। डी स्ट्रेस अगर आपको आता है तो थोड़ी देर के लिए आता है, और ये आपको मोटिवेट करता है अच्छा करने के लिए। जैसे आपका एग्जाम आया, अब आपको डी स्ट्रेस हुआ, तो उस जो डी स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप अपने आप को अच्छा करने के लिए मोटिवेट करेंगे, मुझे इस पेपर में अच्छा करना है, मुझे जो भी टास्क मिला है इसको अच्छा करना है। मगर ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता आया, जैसे वो इवेंट आपका खत्म हुआ, वो स्ट्रेस खत्म हो गया, दिस इज हेल्दी स्ट्रेस। मगर यू स्ट्रेस जो होता है, ये स्ट्रेस बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये बना रहता है, और दिस इज कॉल्ड आधी, जो बार बार आपके मनोमय कोश को हिट करता है। तो ये जो यू स्ट्रेस, आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग विद यू स्ट्रेस। और अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसको सपोर्ट करता है, जो जंक फूड है उसको सपोर्ट करता है ना। कैंसर, पहले हम हजारों में किसी एक को सुनते थे कि हाँ कैंसर है, आजकल एवरी सेकंड पर्सन, हर घर में हमें सुनने मिलता है किसी ना किसी को कैंसर है। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों को आपने देखा था कितने ज्यादा व्रत उपवास करते थे। आज के डेट में ऐसा कोई भी लाइफस्टाइल में कोई भी चीज इंक्लूड नहीं है कि हम भूखे रह रहे हैं, हम भर रहे हैं अपने आप को, और वो भी अनहेल्दी चीजों से। इसके बाद अगली चीज,
ये जो accumulation ऑफ स्ट्रेस है विदाउट प्रॉपर रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स नहीं दे रहे, आपके 24 घंटे में माइंड 10 मिनट भी रिलैक्स नहीं कर रहा है, आपका माइंड सिर्फ काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, इसको ये इट लीड्स टू मिजरी, ये प्रॉब्लम करता है। और इस स्ट्रेस का कारण क्या है? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, क्या क्या कर लेंगे। एक टाइम के बाद आपको शांति की तलाश होगी, आपके पास सफिशिएंट है, संतोष की कमी बहुत ज्यादा है। अगर हमें संतोष नहीं है किसी भी चीज को लेकर तो वी कैन नेवर बी हैप्पी। सेल्फ से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, हमारे परिवार से, अदर से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ज्यादा। उसके ऊपर सोने पे सुहागा हेक्टिक बिजी शेड्यूल्स। हर इंसान आज की डेट में जुबान पे एक शब्द लेके चलता, बहुत बिजी हूँ यार, बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है। क्यों? आपके थॉट्स इतने स्पीड में चल रहे हैं, मंकी माइंड जिसको बोलते हैं, मंकी माइंड। पूरे दिन आप काम कर रहे हैं, नीचे आप जीआईएफ में देख सकते हैं, कंटिन्यूअसली यू आर डूइंग वन और द अदर थिंग। आप अगर आप जब आप फ्री हो जाते हैं 10-11 बजे, आपके ऑफिस के काम खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपका एक सामाजिक दायित्व, व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम चेक करो, फेसबुक चेक करो। आप अपने फोन को बंद करके, टीवी को बंद करके सो सकते हैं, मगर नहीं, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है आज की डेट में। किसी ने पोस्ट डाली, आपने लाइक नहीं किया, ओ माय गॉड व्हाट ए ब्लंडर। किसी ने फेसबुक पे पोस्ट डाली, यू डिडंट कमेंट, यू डिडंट शो थंब, ओ माय गॉड व्हाट ए बिग ब्लंडर। इट्स अ बिग सामाजिक दायित्व दीस डेज। मगर ये सामाजिक दायित्व जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंशन दे रहा है, आपको रेस्ट का समय कम दे रहा है, एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अननेसेसरी का स्ट्रेस। मैं अभी बात कर रही थी कि कैसे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारी बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद पंचकोशास। आप देखेंगे पूरा प्रेजेंटेशन मैं लेके चल रही हूँ विद कनेक्शन ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं यहाँ पे मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ, मेरे से कुछ हो सकता है गलतियां हो, और यहाँ पे बहुत इस फील्ड के विद्वान बैठे हुए हैं, तो मैं एडवांस में माफी चाहती हूँ अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें प्लीज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है हर चीज को बढ़ाने का। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे मैंने बताया सांप आ गया, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अचानक से सांप आ जाए थिएटर में या आपके कमरे में, तो आपको भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब आपको जो भी एक्शन लेना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एकदम से आंखों को डायलेट करेगा, आपके मसल्स को टेंस करेगा, एकदम से आपके हार्ट रेट को एक्सेलरेट करेगा, आपके जो जो हार्मोन्स हैं ब्लड वेसल्स में, कॉर्टिसोल्स, इन सबको इंक्रीज करेगा, आपके एड्रिनल ग्लैंड को एकदम से एक्टिवेट करेगा, और जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसमें आप तुरंत काम करें। आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको सप्रेस करेगा एकदम से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एकदम से हाइप करती हैं। ये जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। either you will fight with the situation or you will flight from the situation. Both the conditions need rigorous energy, that to immediate basis. एकदम immediately आपको एनर्जी चाहिए. It help you to get that energy sympathetic nervous system. दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीजों को रिवर्स लाने का काम करता है। आपकी आंखों को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा वापस, आपके मसल्स को रिलैक्स करेगा, आपके हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगा, आपके ब्रेथ रेट को नॉर्मलाइज करेगा, आपके जो डायलेट हो गई थी ब्लड वेसल्स उसको नॉर्मल करेगा, आपकी जो शुगर एकदम से ब्लड के अंदर बढ़ गई थी उसको ठीक करेगा। ये आपकी बॉडी को टोटल रिलैक्सेशन देता है। मैंने ये सिस्टम क्यों लिया यहाँ पे कि जैसे ही सांप चला गया, उसको पकड़ लिया या वो मर गया, किसी ने मार दिया, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पिक्चर में आएगा एंड इट विल नॉर्मलाइज योर बॉडी अगेन। मगर अब ये सोच के देखें, पीछे हम चलते हैं एक स्लाइड पे, अगर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सोच के देखिए 24 घंटे अगर एक्टिवेट रहे और प्रोलॉन्ग समय के लिए एक्टिवेट रहे, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी थी, प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशन, व्हाट इज दिस? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहे बहुत लंबे समय के लिए, तो क्या होगा?
तो आपकी बॉडी जवाब देना शुरू कर जाएगी, और यही कहलाता है सीड ऑफ स्ट्रेस, और यहीं से आपकी बॉडी में आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। योग में एक इकलौती ऐसी पद्धति है जिसके अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को एक साथ स्टिमुलेट किया जाता है। फर्स्ट वी स्टिमुलेट, देन वी रिलैक्स, ताकि दोनों की प्रैक्टिस बने रहे और दोनों आपके हाथ में रहे कि कब ये चीज बढ़ी तो उसको आपको तुरंत अपनी मर्जी से, अपने कंट्रोल से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे सबसाइड, कैसे आपको शांत करना शरीर को। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक का जो एक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, है ना। कोई भी सिचुएशन आएगी, डिमांडिंग सिचुएशन, ईदर यू विल फ्लाइट और यू विल फाइट, इसके लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। और जैसे ही हम मतलब इसके आगे चलते हैं, और इसके रीजन क्या है, देखिए जैसे ही ये बीमारियां हमारे शरीर में आने शुरू होंगी, तो आज के डेट में मेन बीमारियां कौन कौन सी हमको पता चल रही है। मेंटल टेंशन है बहुत ज्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के तो पूछिए मत कितने केस हैं। नींद नहीं आ रही, एवरी सेकंड पर्सन से इसकी नींद की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, थक जाते हैं, दिन भर काम करते हैं मगर सो नहीं पाते। डिस्पेप्सिया, व्हाट इज दिस डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया इज कंबाइंड वर्ड फॉर ये अजीर्णत्वम, कुजीर्णत्वम और अतिजीर्णत्वम, जो हमारे इंडाइजेस्टिव जो पेट के इश्यूज हैं उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, आज की डेट में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन, बच्चों को 30 साल 28 साल में हमें स्ट्रोक्स पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो है ही, लो बैक पेन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कम उम्र के लोगों को। आर्थराइटिस, पहले आर्थराइटिस बड़े बूढ़ों में देखने मिलता था। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सुबह जाओ, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो हाथ में रुमाल लिए हुए नहीं दिखते, नाक पोंछ रहे होते हैं। कितनी जल्दी जल्दी सर्दी, इम्यून लो, ये सारी बीमारियां कहाँ से आती हैं? जब हम कंटिन्यूअसली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं। अब हम मनोमय कोश के थ्रू, यानी कि हमने अपने मनोमय कोश को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि वो हमारे यहाँ पे आके प्राणमय कोश को तो उसने डिस्टर्ब कर ही रखा है। हैप्पीजार्ड प्राणिक फ्लो, हैप्पीजार्ड प्राणिक फ्लो से आधी जब व्याधि आ गई हमारे अन्नमय कोश के ऊपर। अब इधर वाले पड़ोसियों की बात करें, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। विनाश जैसे बोलते हैं ना, जब हमारा शरीर खराब होता है, जब हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं शरीर से, किसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। इसको बोलते हैं विज्ञानमय कोश का डिस्टर्ब होना, यानी हमारी बुद्धि भ्रमित होना। और जिसकी बुद्धि भ्रमित है वो कहाँ से खुश सुख ढूंढेगा, कहाँ से ब्लिस ढूंढेगा? तो आनंदमय कोश गया। तो एक लेयर मनोमय कोश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टर्बेंसेस इन ऑल द अदर 4 लेयर्स ऑल्सो। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि हम किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, मनोमय कोश, अगर हमें पता चल रहा है कि हम किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, तो हमें 2 चीजें डिसाइड करनी है। पहली चीज, क्या वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे हाथ में है? अगर है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई पॉजिटिवली। और अगर हमारे अंतरात्मा से जवाब आता है कि इस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है, तो फिर ईश्वर प्राणिधान उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके पीछे हम टेंशन क्यों लें? ये जो है, अगर हम इतना सोच लेते हैं तो हमारे कोश जो हैं वो संभलना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए हमने जो पार्ट 1 में रखा था कि कैसे मनोमय कोश के किस कोश से हमारे अंदर डिजीजेस आती हैं, फर्स्ट पार्ट में हम इतना कवर करेंगे। किस टाइप की डिजीजेस आती हैं थोड़ा सा मैंने ये भी बता दिया, मगर इन डिजीजेस को हम कैसे मेडिकली ट्रीट करते हैं ये तो आज की डेट में सभी जानते हैं। आज हम लकी हैं कि हमारे इंडिया के अंदर इतने रिनाउंड, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उसके लिए हम करते हैं। मगर ये कहीं पे भी दो राय नहीं है कि प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में जो है हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सप्रेस करना पड़ता है अपने आप को। बहुत ज्यादा हमारे परिवार वाले परेशान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो आप हेल्दी खुद को दीजिए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, आप तो स्टेरॉइड्स लेके, दवाई लेके आईसीयू में पड़े होंगे, मगर आपकी जो फैमिली है वो तिल तिल करके मर रही होगी। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी दैट यू वांट टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, दिस इज द फर्स्ट थिंग।
है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बहुत अवेलेबल है, मगर कैसे हम इन बीमारियों की दस्तक को पहले ही पहचाने, मनोमय कोश में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको, और कैसे उसका निदान करें, ये हम इस प्रेजेंटेशन के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे हम पहचाने और कैसे हम कोई भी डिजास्टर होने से पहले उसको बचा लें। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप कि मैंने बहुत कोशिश की इस चीज को क्लियर करने की अपनी तरफ से, और मैं यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को विराम दे रही हूँ। इसके आगे का हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम भी होने जा रहा है। प्रीति, शुड आई स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ? या इट वाज ब्रिलियंट, मींस लाइक मोनिका आपने जिस हिसाब से समझाया है इतना डिटेल में, और रीजन ये है कि मोनिका ने ये 2 पार्ट में इसलिए रखा है जिससे कि हम समझ सकें रियल में, ऐसा नहीं हो कि एक साथ में हम बिल्कुल बॉम्बार्डिंग हो जाए, हमारे माइंड पर हमें कुछ भी समझ में ना आए। तो अभी हम आज हमने इतना समझा है कि क्या होता है, कैसे डिसीजेस अकर होती हैं और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। और मोनिका ने इतने शांति से, इतने पेशेंस से समझाया एक एक चीज को डिटेल में। आई एम रियली ग्लैड कि जिस चीज की नॉलेज हम सबको नहीं है, और एकदम एक एज अ बिल्कुल इग्नोरेंट पर्सन आपके सामने बैठा है, एक लेमैन बैठा है, उसको भी समझ में आ जाए, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है।